नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आने वाली 15 अगस्त को देश आज़ादी के 70 साल पूरे करने जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए इस साल की तो भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल भी पूरे होने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिहाज से एक बड़ा पड़ाव है, तो जाहिर सी बात है इस बड़े पड़ाव पे बड़े कार्यक्रमों की अपेक्षा भी की जा सकती है। और ऐसा ही कार्यक्रमों को लेकर मोदी सरकार ने देशव्यापी 15 दिनों के एक बड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है। जश्न आज़ादी में हर कोई आमो खास शामिल हो सके, ये कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री से लेके तमाम मंत्री जनता के बीच जाएंगे और कोशिश होगी कि अपने आज़ादी के इस महत्व को हर कोई समझ सके। देश की आज़ादी में हर एक जिस बलिदानी ने जो योगदान दिया है, उसके योगदान को एक बार फिर से बहुत जोर शोर तरीके से पुनर्स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है एक बड़े स्तर पर देश भर में इस बार हम देख पाएंगे जश्न आज़ादी का माहौल। Yes, Arendra, you are watching a special interview with Union INB and Urban Development Minister Venkaiah Naidu, as India is all set to celebrate 70 years of its independence. Today we will speak to him about Government of India's preparations for the big day. Welcome, Mr. Naidu, to DD News. What is the government's intent behind its decision to launch a 15-day-long nationwide program? Basic purpose is to remember the freedom struggle, recall the memories and the great sacrifice made by our great freedom fighters, and thirdly, to rekindle the spirit of patriotism among the new generation, and fourthly, to integrate that with their aspirations and give them hope that there is a bright future ahead of him, and bring unity among the people. These are the 5 purposes behind this program. सर, ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हमको देखते हैं कि एक रस्म अदायगी जैसी चीज़ें होती हैं, एक सरकारी छुट्टी तरीके से एहसास होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक बड़े बदलाव की ओर आप और आपकी सरकार एक इशारा करती नजर आ रही है, जब देश भर में ये प्रयास यही है? प्रधानमंत्री जी ने हमको सबको सलाह दिया, इसको एक जन आंदोलन नहीं है, जनता में जागृति पैदा करके एक जैसा जश्न बनाते हैं ना, ऐसा इसको बनाना चाहिए। इसलिए हम सब लोग इसमें लगे हैं। खुद प्रधानमंत्री जी कल 9 तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अगस्त 9 को शुरू हुआ, इसलिए कल खुद प्रधानमंत्री जी चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्मस्थल मध्य प्रदेश में वहाँ जा रहे हैं, और आगे भी हम सब लोग मंत्री अलग अलग जगह पे जाने वाले हैं। Do you think that a program like this, which will last for this long, for nearly half a month, will help instill that sense of patriotism among youth, among all sections of society, and make all of us aware about the importance of various places that figured during our freedom struggle? You must understand that we are a big country, 125 crore population, huge geographical area, different languages. Keeping that in mind, we have decided of this 15-day program. We have to reach out to different places. And then 75 union ministers are going to visit different parts of the country. Each minister will be going to 2 places. There are a lot of freedom fighters who have made supreme sacrifice among different regions. Unfortunately, so far, when you talk of freedom movement, it's confined to 3 people, 4 people, 5 people, 6 people. I'm not attributing any motives to anybody. But there are forgotten heroes. There are heroes in every region who have done a heroic job during the freedom movement. We want to integrate all, and we want to bring to the fore the memories of those great leaders. So when you want to do it, then you have to do it in different languages, you have to do it in different regions, and you have to do it in different ways. So all my government ministries, they are all involved in making this into a big affair, so that there is enough debate, discussion generated among the people, and the patriotic fervor is once again regulated among the people. That's the purpose. जी, जब इतनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री खुद या कहा जाए मंत्रीगण जब जनता के बीच जाएंगे, तो मोदी सरकार जनता के द्वार वाली स्थिति होगी और इस जश्न में शामिल होते हुए नजर आएंगे। आपको किस तरीके की कोशिशें या तैयारियां की गई हैं कि जब मंत्री वहां पहुंचेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, उन जो हीरोज जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, शायद जिनका जिक्र इतिहास में ज़्यादा नहीं मिलता, कैसे याद करेंगे उनको? ये दुर्भाग्य है, हमारा इतिहास के पुस्तकों में जितना इन महान भावों ने योगदान दिया, बलिदान दिया, उनका स्मरण ज़्यादा स्तर पर हुआ नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ इलाका में जो स्थानीय स्तर पर उन लोगों ने अपना पूरा जान दिया, ऐतिहासिक कदम उठा के उस समय, उनके बारे में भी जिक्र नहीं है। These 75 ministers going around 150 places.
जाके क्या करेंगे? ये महानुभाव उनका जन्मस्थल जाएंगे, उनका मकान है तो वहाँ जाएंगे, नहीं तो उनका स्मारक है तो स्मारक में जाएंगे, वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनके बारे में लोगों को वहाँ से सभा के द्वारा संबोधित करेंगे और साथ ही साथ वहाँ का लोकल जनता से भी बातचीत करेंगे। कुछ इलाका में केवल जन्मस्थान नहीं, कुछ ऐतिहासिक घटना हुआ, जलियांवाला बाग हुआ, चोरी हुआ, ककोरी कांड हुआ। वो लोग ब्रिटिश वाले लिखते थे ट्रेन को रूट किया, ट्रेन हमारा है। वो तो हमारे लोगों ने ब्रिटिश वालों का वहाँ से पूरा छीन लिया। और अब दंडी सत्याग्रह, साबरमती आश्रम, अलग अलग जगह पे, अभी अगस्त क्रांति मैदान, कल सुबह मैं खुद जा रहा हूँ मुंबई में, ऐसी इलाका में भी जाएंगे मंत्री लोग। तो एक बार पूरा मीडिया के द्वारा और कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा लोगों को स्मरण ऑटोमेटिकली हो जाएगा और साथ ही साथ स्थानीय लोगों में भी अरे भाई हमारा हीरो को नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया, ये भावना भी उन लोगों में आएगा। तो और साथ ही साथ हमने ये भी तय किया वहाँ सभा होंगे। सभा में केवल जो जिन महानुभावों का जन्मस्थल नहीं तो उनका जो बलिदान का स्थल है वहाँ जाए, उन्हीं तक हम सीमित नहीं करेंगे। उस इलाका का आसपास का जो जितना भी महानुभाव है उन सब का इतिहास कुछ बना के वहाँ जनता के सामने रखेंगे, उन लोग का स्मरण करेंगे, उन्होंने क्या किया वगैरह। Will that give a boost then, Mr. Naidu, to all those who would be, say, part of those exhibitions? Because there'll be various artists who would be involved in it. There'll be artisans. And by talking about Tiranga Yatra, you know, the image that comes to mind is the entire country, then all the roads being networked and being bound together by the spirit of patriotism and nationalism. There are two parts in what you're asking. One is Tiranga Yatra. That is going to be a special program. I am sure it will create generate lot of enthusiasm and interest among the younger generation, because all the MPs going in scooter, going in cycle, 7 days, going around his area with a national flag and also with some patriotic songs also. And then covering different areas, garlanding the statues of the leaders, or visiting the birthplace of the people, or visiting the historic places where certain incidents have taken place at the time. That will generate really, and it will be tricolor everywhere. That's why Tiranga Yatra, it's like a pilgrimage. In India, you know, Yatra has got its own place in our history. The second part is various ministries, culture ministry, they're going to organize a big exhibition here. Already preparations are on. While coming, I also saw it. And then there are 7 zones, cultural zones. 7 regional zones also, they will have similar programs. Bharat Parv ka naam pe wo log apna कार्यक्रम कर रहे हैं. Then you have HRD ministry. HRD मंत्रालय के द्वारा पूरा देश में 15 लाख स्कूल्स है. स्कूल्स में ये देशभक्ति के बारे में और जिन महानुभावों ने देश के लिए बलिदान दिया उनका पूरा जीवन के बारे में कॉम्पिटिशन्स होंगे, एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन्स होंगे. और वेश धारणा, आजकल बच्चों में वो भी फैशन है ना, कुछ लोग इसको फैंसी ड्रेस कहते हैं, मैं फैंसी ड्रेस नहीं कहता हूँ. महानुभावों का गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, पटेल जी, नेहरू जी, नहीं तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वीरपांडे, कट्टाबोम्मन, नल्लूरी सीताराम राजू, ऐसा वेश धारणा, झांसी लक्ष्मीबाई करके वो में कंपटीशन होगा, स्पर्धा होगा. एस्से राइटिंग कंपटीशन और वेश धारणा का कंपटीशन, और साथ ही साथ नया आइडियाज़ इसको और भी आगे ले जाने को चाहिए तो उसके बारे में भी आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ के लिए भी हमने क्राउड सोर्सिंग के द्वारा लोगों से इनवाइट कर रहे हैं, वो भी होगा. और कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, दे आर गोइंग टू हैव 1 week long program specially. Khadi village industries, as the Prime Minister has given a call for Khadi. Khadi is Swadeshi. Absolutely. So keeping that in mind, promoting Khadi, that also will be part of this program. And then the Home Ministry, they will be organizing marches across the borders, BSF, Border Security Force. And the Border Security Force also is planning to take some popular singers to the borders. They go and they meet the soldiers who are fighting for the sake of the cause. Women ministers from the union will also be going to border areas. All the women ministers are going to go to different borders to tie Rakhi, because in between is August 18th is Rakhi Bandhan, Raksha Bandhan. So they will go and tie Rakhi to our Jawans who are in the extreme adverse conditions. They are fighting for the security and integrity of the country. That also will be part of this program. Doordarshan and All India Radio, they will be running special programs. Azadi 70 Saal, Yaad Karo Qurbani. So there will be a patriotic fervor, in fact, at every, and moreover, this is not a party program. Parties are also free. ये देश का प्रोग्राम है. ये देश का प्रोग्राम है और देश में सब पार्टियां, सब व्यक्ति, सब एमपीज,
सब विधायक, सब जनप्रतिनिधि, सब संगठन इसको फेस्टिवल के रूप में मना सकते हैं। बिल्कुल, उम्मीद भी हम यही करते हैं जिस प्रकार से आप बात कह रहे हैं, पूरा देश एकता के सूत्र में, राष्ट्रीयता की भावना से कहीं ना कहीं एक साथ नजर आए। लेकिन क्या हम तिरंगा यात्रा से हम ये उम्मीद कर सकते हैं, जैसे देश की सड़कों को नसों के तौर पे हम कहते हैं, जब तिरंगा के साथ में टू व्हीलर से ये यात्राएं दौड़ेंगी, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं देश की नसों में राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार और ज्यादा तेजी से होगा? वो राष्ट्रीयता की कोशिश जो आप चाह रहे हैं, वो हर एक आबो खास में, खासतौर से युवाओं में आप जो चाहते हैं। देशभक्ति का कोई कमी नहीं है, मगर इसको और थोड़ा तेजी से संचार के द्वारा पूरा सब समाज में करा जाए। कारण क्या है, ये आज़ादी का 70 साल का अवसर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, एक तरफ हम आगे बढ़ रहे, दूसरी तरफ कुछ घटना जो हो रहे हैं देश में, उसके कारण से लोगों में थोड़ा आंदोलन भी है। और कुछ लोग अलग अलग कारणों से, कुछ लोग जाति, कुछ लोग मजहब, कुछ लोग प्रांत, कुछ लोग भाषा, इसके आधार पर अपना राजनीति कर रहे हैं, और कुछ लोग अपना एजेंडा के अनुसार इन लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। इसमें इस उत्सव का उद्देश्य है भाई, जो महानुभावों ने कुर्बानी दिया स्वदेश के लिए, हमारा स्वराज्य तो आया, मगर स्वराज्य के रूप में बदलना है। इसके लिए हम लोग सब लोग एकजुट होकर काम करना चाहिए। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, विविधता में एकता, भारत का विशेषता। वी वांट टू शो दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वी वांट टू ब्रिंग ऑल द पीपल ऑन वन प्लेटफॉर्म एट वेरियस प्लेसेस, so that they all speak in unison about the country's unity, integrity, the need for social harmony. Right. Irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one. We are one nation, we are one people, that feeling also. And then in the backdrop of the sacrifice made by those great people. Absolutely. Who have gone to the gallows. So you have reached out to all sections of society, including various political parties, like you pointed out. Do you expect all of them to rise above partisan considerations? I am and appealing to all united? political parties, and also I have written to all the chief ministers. I am in contact with the governors of different states also. Once they take lead, others will follow. And the children has a major role in this. A lot of people are coming saying that just now somebody from Karnataka has approached me, sir, with some 18 important musicians. They have composed a song, India Oneness, that's them. Asha Bhonsle has been contacted by the Home Ministry. She has agreed to go to the border and then sing that famous song there. And then Kumar Sanu is going to the Bengal border. And then our MP, Mr. Tiwari, Delhi. मनोज तिवारी इज गोइंग टू सम अदर बॉर्डर। बाबुल सुप्रियो जी भी गाना गाते हैं। बाबुल सुप्रियो जी का, मगर कल उनका शादी है, फिर भी वो इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। मगर पूरा ऐसी, इसमें कोई ये पार्टी वो पार्टी का सवाल नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट ए पार्टी प्रोग्राम, दिस इज नॉट ए पार्टीजन प्रोग्राम, इट्स ए नेशनल प्रोग्राम। इट इज टू रिक्रिएट द हिस्ट्री एंड टू रिमेंबर द ग्रेट सैक्रिफाइस मेड and make our children to be more patriotic and more nationalistic. When we say भारत माता को जय, भारत माता को जय माने केवल भौगोलिक एक मैप नहीं, तो एक हम लोग ऐसा एक पिक्चर डालते हैं ना, माता मीन्स हमारे देश में, तो वो नहीं है। भारत माता माने भारत में रहने वाले सब लोगों का विकास, उनका उन्नति, उनका जय हो ना। भारत माता माने ऑल पीपल ऑफ द कंट्री। वी आर सेइंग जय हो फॉर ऑल इंडियंस। दैट इज द स्पिरिट। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि मनोज, जिस तरीके से मंत्री महोदय इस बात को कह रहे हैं, ये चीज आगे बढ़ती नजर आएगी और 15 दिनों के इस कार्यक्रम में देश भर में एक अलग से उत्साह और संचार देखने को मिला। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारी ये चर्चा मंत्री महोदय से खासतौर पर यह जारी रहेगी। फायर करता हूं मैं तेज और जोरदार। प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन से मुकाबला प्रॉब्लम है। 2 पॉइंट्स डाउन होना प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम्स जितनी बड़ी, जीत उतनी खास। व्हाट डू आई लाइक मोर, जंग लड़ना या पिस्टल फायर करना? आई लाइक द फैक्ट कि मैं दोनों भारत के लिए करता हूँ। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्क प्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गाँव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो
तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाएं। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। Welcome back. You're watching a special interview with Union INB and Urban Development Minister Venkaiah Naidu, and he's been telling us about how the government is all set to ensure that every section of society is involved in the national celebration on the occasion of India's 71st Independence Day. So, Mr. Naidu, you've told us about a whole range of programs that the government would be engaging in and how you'll be reaching out to various sections of society. But do you think that the real youth, via various essay competitions like you pointed out and the various sporting competitions, would be able to strengthen the team spirit among themselves? Definitely, youth, they are more patriotic and they are willing to do anything. You just should motivate them. Secondly, they have that fervor to do something. If you recall the memories of these great leaders, even my films division is going to telecast all the important films which were having a patriotism as the main theme. That also is simultaneously happening. And for your information, I am also writing to all the media houses, channels, and also newspapers also to take care of this, understand the purpose of the same, and join in the movement. Because as I told you, India is huge, so you need everybody to get into this. And as far as the HRD ministry is concerned, he has told me the response is very encouraging. Children are very enthusiastic to participate in these competitions. The focus will be during that fortnight will be on the unity of the country, on the future roadmap, on what this government is doing. Under Modi ji, the Prime Minister, he told us reform, perform and transform, and then make India strong. सबका साथ सबका विकास, यही केवल नारा नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है। उसमें सबका साथ सबका विकास वो पूरा सफल होना है तो उसमें भागीदारी भी बहुत जरूरी है। सब काम सरकार करेगा, हम बेकार बैठे तो चलेगा, ऐसा नहीं होगा। I asked you that question, Mr. Naidu, because there has been a controversy over a school in Allahabad putting restrictions on singing the national anthem. So what message should go out to those schools who want to be outliers? It should be very clear. You cannot compromise on the unity and integrity of the country. You cannot compromise on nationalism. Religion is different. Religion is a way of worship. What we are talking is about nationalism, commitment to this motherland. India is our mother. Whether you are a Christian, Muslim, Hindu, forward, backward, whatever it is our motherland. Nobody should have any objection to sing in favor of our motherland. It is an unfortunate controversy. I think it's small in nature. The local authorities, they have already taken care of it. A message has to go to the people. Such things are not acceptable. And you cannot bring religion into each and everything. जी सर, हिंदुस्तान के बारे में बात की जाए, दुनिया का सबसे युवा देश है, तो जाहिर सी बात है इस प्रकार के कार्यक्रमों में युवाओं का जुड़ना बहुत लाजमी सी बात है। आप लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आज का युवा भविष्य की ज़्यादा चिंता करता है, तो क्यों आपको लगता है कि सरकार के नाते आज के युवाओं को अपने इतिहास के इस गौरव के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है? और चूंकि आज का युवा ज़्यादातर सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, उस दिशा में क्या कुछ कोशिश करते नजर आएंगे आप? किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो पहले अपना जन्मभूमि, मातृभूमि, उसका इतिहास से गर्व महसूस होना चाहिए. If you are confident about your own heritage, your culture and your motherland, then you will be more energetic to move forward. So इन लोगों का बलिदान से वो लोग प्रेरणा देंगे, अरे भाई हमारा देश के लिए, हमारा भविष्य के लिए, freedom for what? Freedom for the future generations ना. So they will be naturally inspired by
visiting all the places, or reading about those great people, or seeing them on television. During this course of this campaign, Gandhiji will be alive, Nehruji will be live, Patelji will be live, Subhash Chandra Bose will be live. I like that other leaders also. And you inspire, na? As an ordinary person, as a youngster, you might also have witnessed the moment you go to any film and you see somebody coming as Subhash Chandra Bose, everybody will become alert. Yes. And Bhagat Singh comes, even in a picture, people become more alert. That sort of a spirit is there. And that's one thing, rekindle the spirit. Second is freedom for what? Freedom for better future. Freedom for Swaraj, for Suraj, good. That means comfortable life, happy life, and then peaceful life, all these things. Do we have that future? Bhavishya hai kya? Surakshita? Yes. I mean, now, under the leadership of the Prime Minister, what all the development initiatives, विकास का संदर्भ में हम लोग जो काम कर रहे हैं, स्टार्टअप है, स्टैंड अप है, मेक इन इंडिया है, स्वच्छ भारत है, इस सभी कार्यक्रमों के बारे में भी हम दोहराएंगे और लोगों को बताएंगे. इसमें किसी पार्टी का आलोचना करना, किसी का संस्था के बारे में कुछ कहना है हमारा उद्देश्य नहीं है. यूथ को भविष्य के बारे में भरोसा दिलवाने के लिए भाई ये काम हो रहा है, ये काम होगा. जनधन योजना, जन सुरक्षा योजना, जनश्री बीमा योजना, जैसे मैंने कहा दलितों के लिए स्टार्टअप योजना, दलित बच्चों के लिए, और ये विकास सबके पास पहुंचे, ये भी एक मुख्य उद्देश्य है. सर, स्वराज से आपने स्वराज की बात कही, आपको लगता है कि जो 70 साल अभी बीते हैं, क्या इसमें शायद हमने विकास की जो आज़ादी हर आमो खास को महसूस होना चाहिए, तो उसमें कहीं कुछ कमी सी रहती नजर आती है? जरूर कुछ कमियां है. नहीं तो अभी भी 30-40% लोग पढ़े लिखे नहीं है, फैक्ट है ना. पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, अभी भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं ना इधर उधर कुछ इलाके में. निर्भय कांड हमने सुना. अभी भी दलितों के ऊपर कुछ इलाके में अत्याचार हो रहे हैं. अभी भी कुछ इलाके में किसान आत्महत्या कर रहे हैं. ये तो फैक्ट है. मगर वो क्यों हो रहा है, इसका समाधान क्या है, उसका समाधान ढूंढना और आगे बढ़ना, उपाय क्या है. केवल उनका आलोचना किया, आपका पार्टी में ऐसा हुआ तो वो कहेंगे आपका पार्टी में यह नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं है. ये कुछ आगे बढ़ा है, जरूर आगे बढ़ा है, देश विकास की ओर गया है, मगर और तेजी से विकास की ओर जाना चाहिए. यही हमारा एजेंडा होना चाहिए. इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा भाई एजेंडा के संदर्भ में डाइवर्ट मत हो जाओ. विकास, तेजी से विकास, सुशासन. Simple development has no meaning unless there is good governance. You create a big hospital. If the doctors are not working properly, if they are not coming on time, and if everybody is not performing their duty, purpose will not be served. So, विकास and सुशासन दोनों एक साथ चलना चाहिए. प्रधानमंत्री इन दोनों विषयों में जोर देके सबको मोटिवेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं. Now, from Swaraj, what comes to mind is also that India is celebrating the 100th birth anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyay, who spread out the message of Swaraj as well as Antyodaya. So, when you reach out to people, or when various sections of the government reach out to the people, then do you think that people-centric governance of this government would also be at the heart of that message? That definitely, because अभी उन्होंने सवाल पूछा ना, इतना साल के बाद आप संतुष्ट है? संतुष्ट नहीं है. कारण क्या है? कुछ कमियां है, उसको दूर करना चाहिए. इस संदर्भ में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो कहा, अंत्योदया, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति उन तक पहले पहुंचना चाहिए, उनको अपलिफ्ट करना चाहिए. व्हाट इज अंत्योदया? अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उनका उत्थान. हमारा सरकार का सभी कामकाज, प्रधानमंत्री ने कह दिया पहले दिन ही, उन्होंने कहा गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, ये मेरा प्रातिनिध्य है, प्रायोरिटी है, ऐसा कहा. हमारा इस देश में अर्बन रूरल थोड़ा डिवाइड है तो है ही. शहरी इलाके में सब कुछ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनहेंस्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ सब शहरी इलाके में होने के कारण से पलायन बहुत काफ़ी मात्रा में हो गया. ग्रामीण इलाका में अभी भी 18,000 ग्रामीण इलाके में बिजली नहीं है. प्रधानमंत्री ने कहा प्रायोरिटी उसको दो. और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें कुछ कमियां हैं, लीकेजेस हो रहे हैं. तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लीकेजेस खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री ने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और जनधन योजना, आधार कार्ड और मोबाइल के साथ सीधा पेंशन, सब्सिडी, स्कॉलरशिप और गवर्नमेंट का जो भी कॉम्पेंसेशन वगैरह है तो सीधा वो अंतिम व्यक्ति के पास पहुँचे, उसके लिए योजना. प्रधानमंत्री ने मुख्य रूप में कहा आवर डेवलपमेंट हैज़ टू बी inclusive. Secondly, he said, fund the unfunded, banking the unbanked,
Third, reaching the unreached. That is the priority of this government. That is the principle of this government. That's why all these programs are coming. I'm not going to list out all those programs, but every program is aimed at uplifting the poorest of the poor, reaching the unreached, funding the unfunded. जी नायडू जी, अभी 2 साल जब पूरे हुए मोदी सरकार को, तो आप सभी लोग जनता के तक पहुंचे और कई चीज़ें आप लोगों ने जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। ये एक फिर मौका होगा कि आप जनता के पास जाएं और जनता से संवाद स्थापित कर पाएं, क्योंकि आपके राजनीतिक विरोधी भी मानते हैं कि जनता से संवाद स्थापित करना, लोगों को मोबिलाइज करना, जन आंदोलन के तरीके से उनको शामिल करना कार्यक्रमों में, ये आपकी खासियत है, ये आपके विरोधी भी मानते हैं। इस कार्यक्रम से जब आप लोग पहुंचेंगे जनता के पास में, किस प्रकार का फीडबैक? ये मौलिक सिद्धांत है, वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता। अब जाए, मंच पर चढ़े, भाषण दे, वापस आए। लोकतंत्र में हमेशा जनता के साथ संपर्क रखना, उनसे बातचीत करते रहना। जब हम लोग 75 मिनिस्टर्स जाएंगे ना, और हमारा 500+ MPs जाएंगे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का सोच और ये महानुभाव ने जो भी बलिदान दिया, उन्होंने योगदान दिया, उसके बारे में जरूर स्मरण करेंगे। साथ ही साथ जनता क्या सोच रहे, जनता क्या चाह रहे, वो भी वहाँ से फीडबैक वापस लाएंगे। सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, कमियां आए तो कुछ दूर करने के लिए वो फीडबैक बहुत जरूरी होगा। Will that feedback be essential in order to draw an agenda for the next 3 years of this government? Yes, ma'am, definitely, because last time also we had a Vikas Parva. We got a lot of inputs. What are the shortages? What are the missing links? When you identify them, it will be easy for you. For example, you have seen the out-of-box idea of the Prime Minister about the urea shortage. As an youngster, as an MLA in 1978-79, I used to agitate in Assembly. 78-79 onwards, till recently, there used to be firing also for urea black marketing, etc. But Prime Minister has added new idea of a neem-coated urea. Now the shortage has gone. No line, no queue, no waiting list, no shortage anywhere. The prices also come down considerably. This and then this leakages. Late Rajiv Gandhi ji, those days said if I put 100 rupees from Delhi in a pipeline to go to Anantapur, by the time it will reach only 15 paise, 15 rupees, 85 rupees are leakage. So the Prime Minister taking clue from such things, he said money has to reach the targeted people. Keeping that in mind, this verification, Aadhaar card, etc. Aadhaar is going to be very crucial. And the latest information shows that in one sector, LPG distribution alone, 3.5 crore bogus cards have been identified and they are being removed. Around 10 to 12,000 crores is going to be saved, and Prime Minister said give that money to 5 crore helpless women, provide them LPG cylinder free of cost at the beginning. This is how the feedback helps us. जी बहुत शुक्रिया वेंकैया नायडू साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम उम्मीद करते हैं जिस तैयारियों के साथ ने आपने पूरे देश में एक नया संचार करने की कोशिश की, राष्ट्रीय भावना की, वो फलीभूत हो, हर कोई आमो खास इस जश्न आज़ादी में शामिल हो, ऐसी शुभकामनाएं करते हैं। और हम जैसे लोग भी शामिल हों, बढ़ चढ़ के हमारी भी कोशिश होगी दूरदर्शन के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप दैट people across the country understand the message and the meaning of this campaign, and they also participate in the campaign in a big way. The pleasure is ours. Thank you, sir. थैंक यू। तो हमारे साथ पे वेंकैया नायडू जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो पूरी कोशिश है अपने आप में 15 दिन तक जश्न आज़ादी का जो पूरा माहौल बनाने की, देश भर में हर आमो खास को उसके साथ जोड़ने की, तो इस कोशिश में हम दूरदर्शन परिवार तो शामिल हैं ही, और हम ये उम्मीद करते हैं कि देश का हर नागरिक इस जश्न आज़ादी में शामिल होगा। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल मुनमुन इतना ही। हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।